پیغام ہے جو میں نے قرآن شریف کی ایک آیت سے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. مہربانی کر کے اسے لائک اور سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن بھی دبا دیجیے گا. کھلی جو آنکھ تو دیکھا کہ شہر فرقت میں تیری مہک تیری پرچھائیاں بھی جھوٹی ہیں. فریب کار ہیں اظہار کے سب وسیلے بھی، خیال و فکر کی سب گہرائیاں بھی جھوٹی ہیں. تمام لفظ و معافی بھی جھوٹ ہیں بظاہر، تمہارے عہد کی سچائیاں بھی جھوٹی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کو نہ مانے وہ کافر ہے. تو یہ کیسا دھرم ہے بھائی؟ جو کیول اللہ کو مانے اور قرآن پہ مانے وہ تو اچھا، جو نہ مانے اس کو تم گردن کاٹنے کو کہتے ہو. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب. یہ قرآن میں ایسا کہہ رہے ہیں. تو یہ کیسے دھرم ہوگا کہ اگر میرے اللہ تعالیٰ پر تم نہیں مانتے، یدی میرے قرآن پہ نہیں مانتے، میرے محمد صاحب پہ نہیں مانتے تو میں تمہاری ہتیا کر دوں گا. یہ دھرم ہے؟ یہ مار کاٹ کا دھندا ہے. یہ دھرم نہیں ہو سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے دیکھا ایک سنتوش جی ہیں جنہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر اپنا ایک ویڈیو ڈالا ہے اور انہوں نے سورہ توبہ کا ایک آیت پڑھا ہے اور اس کا معنی بھی بتایا ہے. بھائی قرآن کے ہر لفظ میں اتنی باریکیاں چھپی ہوتی ہیں کہ ہر انسان کا سمجھ پانا آسان نہیں ہے. اگر وہ سورہ توبہ کی پہلی آیت پڑھ لیتے تو ایسی باتیں نہ کرتے. ان کے سمجھ میں یہیں تک آیا کہ اس آیت کا تعلق مشرکوں اور کافروں کو جہاں پاؤ مارو اور قتل کرو. یہ نہیں سمجھا انہوں نے کہ کن مشرکوں اور کافروں کے لیے یہ آیت نازل فرمایا اللہ نے. اگر ہر مشرکوں اور کافروں کو مارنے اور قتل کرنے کا حکم ہوتا تو آج حالات یہ نہ ہوتے. سورہ توبہ کی پہلی آیت بھی ملاحظہ فرمائیں. برأتم من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، جس کے معنی ہے بیزاری کا حکم سنانا. بیزاری کا حکم سنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا معاہدہ تھا اور وہ قائم نہ رہے. اب اس طرح سمجھیں، جن لوگوں سے جنگ میدان میں ساتھ دینے کا عہد لیا گیا انہی میں سے کچھ لوگ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی، قافلہ چھوڑ کر بھاگنے لگے، دھوکہ دیا. ان لوگوں کے لیے اللہ نے وہ آیت اتاری جسے سنتوش جی نے پڑھ کر سنایا. اسی لیے اس سورہ کی پہلی آیت کی بھی انہیں جانکاری ہونی چاہیے تھی. یہ غلط بیانی قرآن کی آیت کو غلط ڈھنگ سے پیش کرنے کی ضرورت نہ کرتے. اگر ہر مشرکوں اور کافروں کو مارنے کا حکم ہوتا تو سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل نہ ہوتی. سنیں سورہ مائدہ کی یہ آیت جو 32ویں نمبر کی ہے. من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس کے معنی ہے اس کے سبب ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے بدلے کے بغیر کسی شخص کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو قتل سے بچا کر زندہ رکھا اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ رکھا. کیا سنتوش جی یعنی اس آیت کو نہیں دیکھا
देखना चाहिए था। यह है हमारे इस्लाम की पहचान कि हर इंसान को कत्ल न किया जाए बिला वजह। इतना ऊंचा मर्तबा है हमारे मज़हब का और कुरान शरीफ की हर एक आयत और हर एक लफ्ज़ का। एक छोटा सा वीडियो डाला है मैंने, इसे बगौर सुने, समझ में आ जाएगा कि क्यों यह आयत अल्लाह ने नाजिल फरमाया। सुने। और काफिरों के संबंध में कुरान आगे भी कहती है, कुरान का सूरा तौबा आयत संख्या 5, फैजन सलखल अशरुल हुरुम फक्तुल मुशरिकीना है सुवयतुमुहुम, अर्थात रमजान के पवित्र महीने बीत जाने पर मुशरिकों को जहां पाओ वहां कत्ल कर दो। आज के ज़माने में बहुत सारे हिंदू भी हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं, वो लोग एतराज़ करते हैं कि कुरान में काफिरों को, मुशरिकीन को कत्ल करने का ऑर्डर आया है, हुक्म आया है। तो ये आयतें आप कुरान से निकाल दो कि कुरान में जो है मर्डर करने का, कत्ल करने का ऑर्डर आया है। तुम्हारी समझ में कहाँ से आएगा कुरान? कुरान के असबाक को पढ़ने के लिए यहाँ ज़माने लग जाते हैं। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद फरमाते हैं, सूरह बकरा को समझते समझते मुझे 12 साल लग गए। तो ये आप खाली ट्रांसलेट पढ़ करके, कंप्यूटर का कुरान देख करके आप इस पर एतराज़ करोगे कि कुरान इसमें मर्डर करने का हुक्म देता है, कत्ल करने का हुक्म देता है। इसके सियाको सबाक भी देखो कि इस्लाम ने किन किन मौक़ों पर हुक्म दिया है और वहाँ क्या क्या हालात उनके साथ हुए थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के साथ। मेरे अजीज़ों, वो पस मंज़र कोई नहीं बताता। आयतें ये पढ़ करके कहते हैं, अल्लाह ने फरमाया फ़क़्तुलूहुम हैसु वजदतुमुहुम, तुम जहाँ उनको पाओ कत्ल कर दो। तो ये बता करके लोगों को वरगलाते हैं। देखो, मुसलमानों में को वरगलाया जाता है कुरान के ज़रिए से, जहाँ जहाँ काफिर मिले, मुशरिकीन मिले, कत्ल करने का उनको हुक्म है। अजीज़ा ने गिरामी, अगर हमको हुक्म ऐसा ही आ गया होता तो हम इस हुक्म के पीछे चल पड़ते। आज क्या हमने हर एक को पकड़ के मारा है, कत्ल किया है? ये हुक्म किसके लिए था और क्यों आया था, इसका पस मंज़र देखना होगा आपको। यहाँ तो आपको अगर किसी जज ने ये फैसला सुनाया कि एक ऐसा शख्स है जिसने पार्लियामेंट पर हमला किया है, किसी की, हमारे हुकूमत में मौजूद किसी ओहदेदार की जान ले लिया है और हुकूमत का बहुत ज़्यादा नुकसान किया और वो फरार है, नहीं मिलता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐलान किया कि ये मुजरिम फलां फलां, उसके स्केच भी लगा दिए कि इसको जहां पाओ पकड़ लो। और पुलिस को क्या हुक्म है कि अगर तुम्हें वो नजर आ जाए तो शूट कर दो। ये हुक्म है। अब किसके लिए था ये? जिसने इतने नुकसानात किए। तुमने वो सारी चीजें नहीं बताई कि उसने क्या क्या किया था। तुम हमेशा क्या लेकर के बैठे हो? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां भी आदमी मिले उसको पकड़ के मार दो। मेरे अजीजों, पूरे हुक्म का एक टुकड़ा लेकर के नहीं बयान किया जाता। कुरान में जिनके मुतालिक आए आयतें, ये वो लोग थे जिन्होंने सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन पर दुनिया तंग करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी। इतनी तकलीफें कि तुम सह भी नहीं सकोगे, देख भी नहीं सकोगे, जो मक्का वालों ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा पर की थी। उनको घरों से निकाला, उनकी जायदादें जब्त की, उनको कत्ल किया, चौराहे पर ला करके किसी खातून सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उनकी शर्मगाह पर नेज़ा मार करके शहीद किया। तो क्या इन सब के लिए अल्लाह ताला हुक्म नहीं फरमाएगा कि ये जालिम हैं जिन्होंने जुल्म किया, हद से तजावुज़ की, कि ये जिस तरह के मुजरिम हैं इनको जहां पाओ कत्ल करो? क्या ये इंसाफ का हुक्म नहीं है? इंसाफ नहीं है? क्या हम किसी रेपिस्ट को ऐसे ही छोड़ देंगे? आज तो दुनिया भी अगर हाथ में मिल जाए कोई किसी बच्ची का रेप करने वाला या किसी खातून की इज्जत से खेलने वाला, उसे छोड़ देती है दुनिया। पुलिस के हाथ जाने से पहले वो मर जाता है। या और बात है कि पुलिस के पास जाएगा तब भी, कानून के हाथ लगेगा तब भी उसे फांसी तो होनी है, वो मरेगा। तो ये इंसाफ है जो कुरान ने हमें बयान किया है। तो ये आयतों पर ये मैं एक बड़ी लंबी गुफ्तगू है, मैं किसी और मौके पर करूंगा। क्या कुरान हर मुशरिक, हर काफिर को कत्ल करने का हुक्म देता है? ऐसा नहीं है। हालत जंग में हो, जब उनकी तरफ से तुम्हारे ऊपर हमले हों, तुम्हारे घर बार उजाड़े जाएं, तब का हुक्म है। और ये दुनिया में हर कोई हुक्म देता है, हर कोई कहता है अगर मेरे हिंदुस्तान पर, अगर मेरे मुल्क पर कोई दूसरा हमला आवर हो जाए तो क्या मैं हमला करने वाले को खामोश देखता बैठा रहूं या मैं उसकी कलाई पकड़ूं?
या उसको मैं मारूं, हिंदुस्तान का हर गयूर आदमी ये कहेगा कि तुम्हारे मुल्क पर अगर कोई दूसरे मुल्क से आकर के हमला करे तो उसको सबक सिखाओ और उसको अच्छी तरह से सज़ा दो अगर वो तुम्हारे हाथ में आए। ये इंसाफ है। कुरान ने भी हमको यही हुक्म दिया है, जो इज़्ज़त नफ्स पर तुम्हारे हमला करे उसके मुतालिक तुम्हें जवाब देना है, तुम्हें सेल्फ डिफेंस करना है। इसी का नाम जिहाद भी है, इसी का नाम जिहाद है, सेल्फ डिफेंस का नाम। और ये हर कोई आज कर सकता है, बिल्कुल जायज़ है। इसको दर हकीकत मीडिया ने, दज्जाली मीडिया ने अपने प्रोपेगेंडों के ज़रिए से इतना बदनाम करने की कोशिश की है कि ये नाम लेते लेते कोई डरने लग जाए। मैं अलल ऐलान कहता हूँ, मेरी ये बात फैलेगी ज़रूर, मुझे मालूम, जिहाद में कोई कबाहत नहीं, कोई बुराई नहीं। अगर कोई बुराई होती तो जिहाद इस्लाम में होता ही नहीं। मुझे कोई साबित करके दिखाए। जिहाद का मतलब अगर तुम ये समझते हो कि लश्कर तैयबा जो कर रहा है, जिहाद का मतलब अगर तुम ये समझते हो कि नाहक आकर के किसी पर बम बांध करके उड़ाने का नाम है, मैं उस तरह के जिहाद की बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने जिहाद को बदनाम करने के लिए ये साजिशें रची हैं। हम तो ये तस्लीम भी नहीं करते कि लश्कर तैयबा नाम की कोई इस्लामी तंजीम हो सकती है। मैं तो इस बात को तस्लीम भी नहीं करता कि ISIS नाम की कोई इस्लामी तंजीम होगी। हमारा इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं नज़र आता। ये दूसरों की बनाई हुई हो सकती हैं, खालिस इस्लाम पढ़ने वाले की ऐसी कोई तंजीम हो ही नहीं सकती। जिहाद एक पवित्र लफ्ज़ है, मुक़द्दस वर्ड है, ये मुक़द्दस वर्ड है। इस पर हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहादत और अजर अज़ीम का वादा फरमाया है। मेरे अजीज़ों मोमिनीन, और मैं तमाम उलमा से भी गुजारिश करूँगा, ये जितना इसे बदनाम करने के लिए मीडिया उछाले, तुम उतना ज़्यादा इस लफ्ज़ को पाकीज़ा तरीके से लोगों में वाज़ेह तरीके से बयान करो। जिहाद का मफ़हूम क्या है, क्यों हम इस बात से खौफ करें। इन लोगों ने अगर तुमको परेशान करने के लिए तुम्हारी किसी चीज़ का नाम लेकर बदनाम करना शुरू किया तो क्या तुम वो सारी चीज़ें छोड़ना शुरू कर दोगे। आज लफ्ज़ जिहाद को बदनाम कर रहे हैं, कल फिर अजानों को बदनाम करने लगेंगे। अजान जो है ऐसी होती वैसी होती है, तुम अजानें बंद कर दोगे, ख़त्म कर दोगे। उसके बाद फिर तुम्हारी नमाज़ों पर, तुम्हारी टोपियों पर, तुम्हारी दाढ़ियों पर, तुम्हारे कुरान पर, कि ये सब चीज़ें आतंक की तरफ ले जाती हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर वो ये कहने लग जाएं कि कुरान आतंक सिखाता है, दहशतगर्दी सिखाता है, तुम कुरान से दस्तबरदारी कर लोगे? हरगिज़ नहीं। इसलिए कि अगर कोई गलत प्रोपेगेंडा करता है तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इस्लाम का सही चेहरा उनके सामने पेश किया जाए। हम बताएं कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये हर ज़माने में होता रहा। क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा में तबलीग इस्लाम फरमा रहे थे, जालिमों ने ये मशहूर नहीं किया था कि हुजूर जादूगर हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काहिन कहा, साहिर कहा, शायर कहा, बल्कि इतना प्रोपेगेंडा फैलाया था कि लोग मोहल्ला छोड़कर दूसरी जगह जा रहे थे कि अगर उनका जादू हम पर असर कर गया तो हम शायद अपना दीन छोड़ देंगे। ये कितना झूठा प्रोपेगेंडा था। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिनकी मुलाकात बिल मुशाफा हो गई, फिर उनको समझ में आ गया कि ये जालिम कुफ़ार यानी अबू जहल के चेलों ने झूठी अफवाहें फैलाई थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा शख्स कभी जादू का पैरोकार हो ही नहीं सकता। सूरत में और सीरत में इतना अच्छा इंसान जिसके अखलाक इतने बुलंद व बाला हैं, वो कभी झूठा शायर साहिर हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने महसूस किया आज यही ज़रूरत है मेरे अजीज़ों, ये पूरी दुनिया मिलकर के अगर प्रोपेगेंडा फैलाए हमारे मुताल्लिक, तुम अपने अखलाक से लोगों को बताओ, इस्लाम की सच्ची तालीमात से लोगों को बताओ कि मेरा ये कलाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कलाम जो हमें दिया गया है, ये पूरी दुनिया की अमन का ज़ामिन है, पूरे दुनिया का अमन और सबसे बेहतरीन निज़ाम पेश करने वाली एक किताब है। बल्कि वो ख़बरें भी इसके अंदर मौजूद हैं जो अभी तक हुई भी नहीं हैं। 1400 साल पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा ये किताब बाद में होने वाले तमाम वाक़यात की खबर दे रही है। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा सा तो मेहनत किया है हमने।
شب